speaker with us, Dr. Harish Patankar, sir. He is a well-known Ayurveda practitioner in India and abroad. Sir is the founder and director of India's first Ayurvedic hair testing lab and research center, Case Ayurved, which has 108 centers all over the world. Sir is chief consultant at Arogyavardhini Chikitsalaya, Pune. Sir is the author of book Dravyagun Visesh Vignan along with special verses. Sir is known for famous concept of Smriti Ayurved. Sir is a renowned Nadi Tanya, Sanskrit and yoga teacher. Sir is the founder of Prachin Samhita Gurukul. Sir has to his credits lots of awards, and I would like to read out few. Sir have been awarded by Swadeshi Bharat Samman Award in 2009. Sir have been awarded with Ayurved Mitra Puruskar 2018. Sir have been awarded with Best President of Lions Club of Pune Supreme in 2014. Sir has 3 times with Special Trophy by Commissioner of Pune. Sir have received lots of awards, and the list is endless. We are really happy to have such a special person with us this evening. Sir have conducted international symposium. Sir have taught to lots of foreign students, have regularly visited to Russia, and sir have motivated more than thousands of students and doctors doing Ayurveda practice in India and abroad. Sir have successfully completed Netra Tarpan for more than 6,500 delegates and patients with camps. So we are really grateful, and it's a pleasure to have sir with us. Now let me welcome Harish Patankar sir to present his views and experiences with us. Sir, you're welcome. The dais is yours. Yes, thank you very much, and warm welcome to all the attendees of Ayush Samruddhi International Webinar. Namaste, myself Dr. Harish Patankar, and I am very glad to present my views in front of all of you dignitaries on the dais. I want to thank to my best friend Mr. Jayesh Thakkar sir for so nicely introduction over here. Also, I want to thank my younger brother, Dr. Venkat Joshi sir. We are together in Netherlands and we have enjoyed very lot in some international sessions. So, and he have inaugurated today's session. Thank you to Pawan Kumar sir, respected sir, have given me this chance to represent my views over here. And thanks to Dr. Animesh sir, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूरा हाईटेक क्लिनिक कैसे बनाना है इसका पूरा जो इंफॉर्मेशन लिया है आपने आज मेरा आधा से ज्यादा काम कर दिया है ऑलरेडी। ओके, तो शायद अभी जय सर मैं 30 मिनट्स भी लूंगा तो भी शायद अच्छा रहेगा, तो नेक्स्ट स्पीकर भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ माय सेशन। थैंक्स टू ऑल, पहले ही इसलिए सब लोगों का धन्यवाद। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज जैसे अभी ठक्कर सर ने बताया कि हमारे केश आयुर्वेद के 108 सेंटर्स है। केश आयुर्वेद इज इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक हेयर टेस्टिंग लैब एंड रिसर्च सेंटर। सिमिलरली वी हैव अनदर ब्रांड काया आयुर्वेद, और काया बंधु हमारे डॉक्टर अनिमेश सर है ही। ओके, और मुझे खुशी हो रही कि और एक सिमिलर नाम का ब्रांड मार्केट में आया है ऑलरेडी, दैट इज काया आयुर्वेद। सो काया बंधु एंड काया आयुर्वेद विल वर्क टुगेदर. So this is the need of current era. Like Ashtanga Ayurveda, it is time to start the specialty branches in Ayurveda. This is the need of current era. That's why we have to collaborate the ancient knowledge with modern technology. So whenever we want to collaborate the ancient knowledge with modern technology, we must remember the 3 points in our mind to make a bridge in between these. That is the तत्व, शास्त्र और व्यवहार. तत्व, शास्त्र और व्यवहार कभी चेंज नहीं होना चाहिए. मतलब कोई भी चीज एंसेंट और मॉडर्न की जब हम मिक्स करना चाहते हैं या उस प्रकार से अपने क्लिनिक को हाईटेक करना चाहते हैं, तो तत्व तो वही है. जैसे अगर मेरा वेलकम आप लोगों को करना है तो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो जयेश जी ने शब्द सुमनों से वेलकम किया. अगर शायद हम मिलते तो जादू की झप्पी भी एक दूसरे को देते, या फिर वो कोई पुष्पगुच्छ देके मुझे वेलकम करते. यही वेलकम जब मैं रशिया में जाता हूँ या अलग कंट्री में जाता हूँ तो वो उनके हिसाब से वेलकम करते हैं.
तो किसी का स्वागत करना ये एक तत्व है। शास्त्र के हिसाब से स्वागत के लिए किस प्रकार का स्वागत है, कौन-सा स्वागत है, किस इवेंट के लिए स्वागत है, ये देखा जाएगा। और व्यवहार के तौर पर जहाँ पे जो उपलब्ध है, फूल उपलब्ध है तो फूल से किया जाएगा, नारिकेल उपलब्ध है तो नारिकेल से किया जाएगा, शाल उपलब्ध है तो शाल से किया जाएगा और आजकल के ज़माने में तो अलग-अलग गिफ्ट के तौर पे पेन ड्राइव से लेके लैपटॉप देके स्वागत किया जाता है। तो व्यवहार चेंज हो जाता है, लेकिन स्वागत करने का जो तत्व है वो वैसे की वैसे रह जाता है, वो मन में होता है। तो एंशिएंट नॉलेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करते समय हमें तत्व और शास्त्र वो ही रखना है। व्यवहार के लिए अगर हम कोई नया इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो कोई बात नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी सर ने बस्ती पुटपाक यंत्र वगैरह बताया, वैसे योनि बस्ती के लिए आजकल इन्फेंट फीडिंग ट्यूब भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सब लोगों को लगेगा कि इन्फेंट फीडिंग ट्यूब ये योनि बस्ती के लिए ये कैसे संभव है? लेकिन यस, ये संभव है। तत्व और शास्त्र को बिना चेंज किए केवल व्यवहार सौकर्य हम इन्फेंट फीडिंग ट्यूब अगर योनि बस्ती के लिए यूज करते हैं तो वो और इजी जाता है। लेकिन जिसने भी किसने उस इन्फेंट फीडिंग ट्यूब का रिसर्च किया, उसको कभी सपने में भी नहीं लगा होगा कि ये आयुर्वेद के वैद्य आगे जाके इन्फेंट फीडिंग ट्यूब का यूटिलाइजेशन योनि बस्ती के लिए करेंगे। ओके, तो इन्वेंशंस होते रहते हैं, हमें इनोवेटिव आइडिया लेके अपने शास्त्र के लिए व्यवहार में उसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है वो हमें सीखना है। जैसे अभी लैपटॉप के ऊपर, जैसे अभी हाईटेक मोबाइल के ऊपर हाईटेक प्रेजेंटेशन के साथ आज यहाँ पे अपने पवन कुमार शर्मा सर ने इतना बड़ा नेशनल वेबिनार रखा है। तो इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर हम क्या काम करते हैं वो ज्यादा मैटर है। इसलिए तत्व शास्त्र बिना भूले व्यवहार के लिए जो गतिमान साधन है वो यूटिलाइज करके हमने आगे जाना चाहिए। इसलिए जो आयुर्वेद के प्रगत अंग है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषाण, इस अष्ट अंग में अभी हमने अभी मॉडर्न के हिसाब से या करंट इरा के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक नया अंग इसमें डाला है, केशायुर्वेद। कोई अपना नहीं है, ग्रंथ में ही जो दिया है उस ग्रंथ में, जैसे हम कहते हैं कि वेदों का सार जो है, उस वेदों के सार से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से जो भी आयु के रिलेटेड था उससे आयुर्वेद बनाया गया। इसलिए ब्रह्मा स्मृत्वा युषो वेदम कहते हैं कि कोई किसी ने निर्माण नहीं किया है, हर एक ने स्मरण किया है, कंपाइलेशन किया है। उसी प्रकार से हमने केशायुर्वेद निर्माण नहीं किया है, हमने भी केवल ग्रंथ का अध्ययन करके उसका स्मरण किया है, उसका कंपाइलेशन किया है। और काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषाणी, आठों अंगों से जो जो केश के प्रति है, जो जो स्किन एंड हेयर के प्रति है, उनको साथ में लेके केशायुर्वेद और कायायुर्वेद एक अलग कंपाइलेशन हम कह सकते हैं, वो आपके सामने करंट इरा के तौर पे रखा है। तो मेरी आशा है कि इसी प्रकार से नेत्रायुर्वेद, इसी प्रकार से गर्भायुर्वेद, इसी प्रकार से आगे जाके जिसको भी जिस फील्ड में काम करना है उस प्रकार का आयुर्वेद मतलब वो स्पेशलिटी शाखा, स्पेशलिटी ब्रांच क्रिएट हो जाए और लोगों को हम अच्छी तरीके से सर्विस दे पाए। इसलिए आजकल हम देखते हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, इनएडिक्वेट स्लीप, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जंक फूड, एक्सेसिव केमिकल, शैम्पू, इन सभी चीजों से हेयर लॉस की शिकायत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोविड के सिचुएशन में तो हमने अभी पोस्ट कोविड हेयर फॉल एक अलग ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला एक सिम्टम देखा है। तो कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि केवल केश और स्किन, मतलब काया आयुर्वेद एंड केशायुर्वेद, इन दोनों के ऊपर भी काम करें तो भी हमारे सभी वैद्यों को उनकी प्रैक्टिस कंट्रोल नहीं होगी, इतने मार्केट में पेशेंट्स है। हम इन चीजों को देख नहीं रहे हैं, थोड़ा-सा देखना चाहिए, पर्टिकुलरली बिज़नेस के एंगल से भी देखना चाहिए, शास्त्र सेवा के एंगल से भी देखना चाहिए, क्वचित धर्मा, क्वचित मैत्री, क्वचित अर्था, क्वचित ऐसा, सभी एंगल से देखना चाहिए। मेरे पास तो हेयर के ऐसे कुछ पेशेंट है कि बाल गिरने के कारण उन्होंने सुसाइडल थॉट्स उनके मन में आए हैं, आत्महत्या के विचार आए हैं। कितने यंगस्टर्स की शादी नहीं होती है, शादी टूट जाती है, अगर वो विग लगाते हैं, पता चल जाता है तो कहाँ से कहाँ तक वो बात चली जाती है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है, आप ऐसा मत सोचिए कि केश आयुर्वेद में प्रॉब्लम्स लोगों को हेयर के रिलेटेड नहीं है, बहुत है। हर एक फील्ड में आपको इससे एक डोर नॉकिंग मिलेगा। काया आयुर्वेद और केश आयुर्वेद से आपको सभी पेशेंट्स ट्रीट करने के लिए एक नॉकिंग डोर मिलता है, जिसके साथ आप उसके पूरे बॉडी में एंट्री कर सकते हैं अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट देने के लिए।
इसलिए हमेशा ग्रंथ में जो बताया है कि ग्रंथोक्त व्याधि और जो लेशोक्त है, जो अनुक्त व्याधि है, इस प्रकार से हमें बाइफर्केशन करना चाहिए। ग्रंथक तो इंडिपेंडेंट डिसीजेस में हमें खालित्य, पालित्य, दारुणक, अरुणशिका और इंद्रलुप्त केवल 5 ही हेयर के डिसऑर्डर्स मिलते हैं। लेकिन अनएक्सप्लेन्ड डिसीजेस में, अनुक्त और लेशोक्त डिसीजेस में हमें ज्वर से लेके रक्तपित्त, पांडु, कामला, स्थौल्य, अतिसार, ग्रहणी, हर एक सेगमेंट में, हर एक डिसीज में हमने पढ़ा है कि अल्टीमेट वातज, पित्तज और कफज प्रकार में उसके नख, मल, मूत्र, केश XYZ 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 वर्ण के बन जाते हैं। मतलब हर एक डिसीज में उस डिसीज के लक्षण बताते समय उस व्याधि में नाखून के ऊपर, बालों के ऊपर क्या असर होगा ये दिया जाता है। इसका मतलब उक्त व्याधि भी खालित्य, पालित्य, दारुण, अरुणशिका, इंद्रलुप्त ये 5 ही है। फिर भी अनुक्त व्याधि हर एक डिसीज में हमें नाखून और बालों के ऊपर उसका जो इफेक्ट हुआ है, स्किन के ऊपर जो इफेक्ट हुआ है, वो देखने को मिलने वाला है। इसलिए केश आयुर्वेद और काय आयुर्वेद का सेगमेंट बहुत बड़ा है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर आप केश आयुर्वेद का ब्रांड लेके या काय आयुर्वेद का ब्रांड लेके आपका क्लिनिक खोल रहे हैं तो केवल केश और काया की ही प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है। आप बहुत बड़ी प्रैक्टिस, हर एक डिसीज की प्रैक्टिस वाया दिस एंगल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये केवल डोर ओपनिंग है आपको, तो इसलिए कुछ एक यूनिक सिस्टम होनी चाहिए। तो जैसे कि केश आयुर्वेद में एक यूनिक सिस्टम है हेयर टेस्टिंग की। अगर आपको आपका क्लिनिक हाईटेक करना है, अगर आपको आपके शास्त्र को हाईटेक करना है, अगर आपका सब्जेक्ट ही हाईटेक किस प्रकार से किया जाए आयुर्वेद को ये है, तो हमें ये देखना चाहिए कि तत्व शास्त्र बिना चेंज किए व्यवहार में प्रत्यक्ष ही अल्पम, अनल्पम, अप्रत्यक्षम। अगर प्रत्यक्ष हमें बालों के डिसीजेस कम दिख रहे हैं तो हमें उसको कैसे और इलाबरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें आंखों से नहीं दिखता है तो ओपन आइज से नहीं दिखता है तो हम चश्मा यूज करते हैं, स्पेक्स लगाते हैं। स्पेक्स से नहीं दिखेगा तो हम थोड़ा सा लेंस लेते हैं, लेंस से नहीं दिखेगा तो आप माइक्रोस्कोप लेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंगे, आगे जाके स्टेरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप लेंगे। हमें प्राउड फीलिंग है कि 10-10 लाख रुपए तक के माइक्रोस्कोप आज हमारे सिस्टम में है। स्टेरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप जैसे माइक्रोस्कोप भी यूज किए जाते हैं और हर एक हेयर सैंपल के रूट के, शाफ्ट के, टिप के अलग अलग प्रकार के एनालिसिस किए जाते हैं और उसका एक यूनिक 17 पंजों का टेस्ट, 17 पन्नों का एक यूनिक SOP वाला हेयर टेस्टिंग रिपोर्ट दिया जाता है, जिसमें स्काल्प फोटोग्राफी, स्काल्प एनालिसिस एंड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ हेयर डिटेल में दिया गया होता है। तो इस प्रकार से आप भी आपके यहाँ पे आपके क्लिनिक को हाईटेक कर सकते हैं। आप जो भी विषय लेंगे उस विषय में थोड़ा सोचिए कि देखो कभी भी आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट करेंगे, जैसे मैंने अनिरुद्ध जोशी सर के साथ जब नाड़ी तरंगिणी डिवाइस, नाड़ी तरंगिणी जोशी सर ने बनाया था, तो उस डिवाइस में जब हम कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे थे तो उस समय भी हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि जब हम कोई किसी रोगी की नाड़ी परीक्षा करते हैं और उसको हम प्रिंट आउट उसकी देते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है कि मेरा कुछ तो एनालिसिस हो गया है। जैसे आप सोनोग्राफी सेंटर में जाएंगे और वो केवल सोनोग्राफी करके आपको एक्सप्लेन करके भेज देगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही सोनोलॉजिस्ट आपको उसकी रिपोर्ट की प्रिंट आउट देगा तो आपको बिफोर एंड आफ्टर उसमें क्या डिफरेंसेस है वो पता चलेगा। आपको रिपोर्ट मिलने के कारण पेशेंट को खुशी होती है और वो अपने डिसीज को इवेल्युएट कर सकता है। उसी प्रकार अपना एक यूनिक हेयर टेस्टिंग रिपोर्ट पेशेंट को जाने के कारण जो एक ब्लेंड है वेरी नाइस मॉडर्न इक्विपमेंट एंड एंशिएंट ट्रीटमेंट्स का विदाउट चेंजिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, जिसमें त्रिदोष एनालिसिस है, सप्त धातु एनालिसिस है, केश प्रकृति परीक्षण है, केश विकृति परीक्षण है, पांचभौतिक परीक्षण है। ओके, यहाँ से लेके हेयर टेस्ट, मेडुला टेस्ट, कलर टेस्ट, थिकनेस टेस्ट, ओके, उसके बाद स्काल्प एनालिसिस, स्काल्प फोटोग्राफी, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट टेस्ट तक है। मतलब हम हमेशा कहते हैं कि वैद्य क्या करता है कि अपने क्लिनिक में जो उसने खुद ने बनाया हुआ तेल है वही हर एक पेशेंट को देता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने पेशेंट के हेयर के अनुसार उसका प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहिए और कंपनी का जो बेस्ट तेल है वो आपने देना चाहिए। केश आयुर्वेद में हमने कभी भी हमारे 108 फ्रेंचाइजी होल्डर्स को ये कंपल्शन नहीं रखा है कि आप केश आयुर्वेद की मेडिसिन ले लो। हमने हमेशा, मतलब यहाँ बात करने में भी मुझे गौर होगा कि रामदेव बाबा जी से लेके श्री श्री रविशंकर जी तक और केश किंग से लेके कोई भी अच्छा मार्केट में जो ब्रांड है उस ब्रांड
कि हर एक मेडिसिन को, हर एक तेल को हम अपने रिपोर्ट सिस्टम में डाले हैं और जिस पेशेंट के लिए जो बेस्ट ऑयल लगेगा उस ऑयल को सिस्टमैटिकली प्रिस्क्रिप्शन में आ जाता है, तो पेशेंट भी हैप्पी हो जाता है, रिजल्ट भी अच्छा मिलता है और अल्टीमेटली पेशेंट का ट्रस्ट आपके ऊपर का बढ़ता है। हमेशा ध्यान में रखो, पेशेंट कभी ये ध्यान में नहीं रखता कि आपने किस कंपनी का मेडिसिन दिया है, पेशेंट ये ध्यान में रखता है कि आपने मेडिसिन दिया और उस पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो ना। हमें एक आदत हुई होती है कि जो अपने क्लिनिक में मेडिसिन है वही देने का, वो आदत छोड़िए, जो पेशेंट के लिए बेस्ट है वो देने का प्रयास करो, वो कोशिश करो। इसलिए डायग्नोस्टिक वैल्यूएडिशन करो और ट्रीटमेंट वैल्यूएडिशन करो। इसलिए एक फॉर्मेट में आपको देता हूं, हाउ टू मेक अ हाईटेक क्लिनिक। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप क्लिनिक में एक थीम लेके चला रहे हो, जैसे अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं केश आयुर्वेद और काय आयुर्वेद का एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन मेरे हर एक बात में आप अपने हिसाब से सोचो, नेत्र आयुर्वेद के हिसाब से सोचो, गर्भ आयुर्वेद के हिसाब से सोचो, यकृत आयुर्वेद के हिसाब से सोचो। ओके, इसी प्रकार से गृहिणी के लिए सोचो, अलग अलग आयुर्वेद ही नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी थीम आपके दिमाग में है वो थीम को सोचो और जो मेरा आगे का प्रेजेंटेशन है वो आप उसको मिक्स करने का प्रयास करो, तो आपको अलग अलग आइडियाज भी इसमें आ जाएंगे, आप आपके क्लिनिक को कैसे हाईटेक कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रंथ में, और मैंने एक बात कही है आपको कि हमें तत्व और शास्त्र छोड़ना नहीं है, श्लोक का रेफरेंस हर एक जगह पे चाहिए। तो दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षित रोगिणम हमने देखा है, तो रोगी परीक्षण करने के लिए आप हाईटेक कैसे बन सकते हैं? तो दर्शन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए आप हेयर एंड स्किन एनालाइजर यूज करो, डर्मोस्कोप यूज करो, आप अलग अलग लेंसेज यूज करो, ओके, आप माइक्रोस्कोप यूज करो, तो इस प्रकार का आप दर्शन परीक्षा बढ़ा सकते हो, है ना। आप सोनोग्राफी का यूनिट ले सकते हो, आप एक्सरे का मशीन ले सकते हो, आगे जाके आप एमआरआई के सेटअप लगवा सकते हो। तो जो भी है, ये जो रेडियोलॉजिस्ट या जो भी मॉडर्न साइंस की जितनी भी डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट्स है, वो सब एस्पेक्ट्स हमें अपने क्लिनिक में लेना है और उसके बाद पित्त कफ सप्त धातु त्रिमल इस भाषा में, परिभाषा में हमें उसको देखना है, सीखना है। स्पर्शन परीक्षा के लिए जैसे हम मॉइस्चर एनालाइजर यूज करते हैं, उसी प्रकार से जो जहां की परीक्षा, मतलब स्किन की परीक्षण करना है तो स्किन के लिए जो मशीनरीज है, हेयर का परीक्षण करना है तो हेयर के लिए जो मटेरियल्स है स्पर्शन परीक्षण विधि के लिए, वो आप लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना शुरू कीजिए। उसी प्रकार से प्रश्न परीक्षण के लिए, क्वेश्चनर के लिए ऑटो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू करो। जैसे अभी अनिमेश सर ने कहा कि पेपरलेस क्लिनिक होना चाहिए, उस प्रकार पेपरलेस क्लिनिक करो, सॉफ्टवेयर में ही सब चीजें आनी चाहिए। आपका अपॉइंटमेंट सिस्टम से लेके, केस टेकिंग से लेके, उसके रिपोर्ट से लेके, फोटोग्राफी से लेके, बिफोर आफ्टर फोटो से लेके, केश आयुर्वेद सॉफ्टवेयर की यही खासियत है कि अगर आप कुछ केश आयुर्वेद सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है और बहुत अच्छी तरीके से रिपोर्ट तक आप उसमें से प्रिंट करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू करो। जैसे अभी इंस्पेक्शन के लिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, हम एक हेयर एंड स्किन एनालाइजर और एक डर्मोस्कोप यूज करते हैं, जिसके साथ हम दर्शन परीक्षा को एनहांस किया है। तो आप स्काल्प एनालिसिस कर सकते हैं, स्काल्प फोटोग्राफी के बाद स्काल्प एनालिसिस आप करेंगे तो आपकी दर्शन परीक्षा और बढ़ने वाली है। तो नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ हेयर पर हेयर फॉलिकल, यहाँ से लेके स्काल्प के जितने भी अलग अलग डिसऑर्डर्स है, वो अलग अलग डिसऑर्डर्स आप इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए आपकी दर्शन परीक्षा एनहांस करके आप सीख सकते हैं। तो आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल के पेशेंट को दे सकते हैं, तो पेशेंट भी हैप्पी हो जाता है। और जब पेशेंट खुद उसके बालों का डैंड्रफ, उसके ऑयलीनेस स्काल्प का, या उसके स्काल्प के ऊपर आए हुए अलग अलग डिसीजेस को जब खुद अपनी आंखों से देखता है, तो वो बहुत खुश होता है आपके ऊपर। और अगले फॉलोअप में आप जब रिपीट एनालिसिस करते हैं तो आपको भी चेंजेस पता चल जाता है कि आपने दारुण खर तेल देने के बाद क्या चेंजेस हुए, आपने पालितेर तेल देने के बाद क्या चेंजेस हुए, तो ये चेंजेस भी आप उसको दिखा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइंडिंग्स हमें मिल जाते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइंडिंग्स होते हैं दर्शन परीक्षण के, जैसे हेल्दी स्काल्प है, ड्राई स्काल्प है, ऑयली स्काल्प है, डैंड्रफ वाला स्काल्प है। तो अलग अलग प्रकार का स्काल्प आपको इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए देखने को मिलेगा। आप पेशेंट को भी वो दिखा सकते हैं, इसके रिपोर्ट्स रख सकते हैं, ताकि आगे जाके आप नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। हमें कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। तो केश आयुर्वेद के रिसर्च पेपर्स को
दुबई में भी जो आयुष का फर्स्ट इंटरनेशनल एक वेबिनार हुआ था एक, उसमें भी हमें फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो इसका बेस क्या है? इसका बेस ये है कि डेटा मेंटेन करना। आप अच्छी तरीके से डेटा मेंटेन करना शुरू करो, यही बिफोर आफ्टर के पिक्स आपको आपके केसेस रिप्रेजेंटेशन के लिए। आयुर्वेद में सबसे बड़ा यही है ना कि लोग डेटा मेंटेन नहीं करते, हर कोई इसी के ऊपर बोलता है। तो केशा आयुर्वेद का, काया आयुर्वेद का एक सिंपल एम है, मोटो है कि आप हर एक चीज का डेटा सॉफ्टवेयर के जरिए ऑटोमेटिकली मेंटेन कर सकते हैं, और जिसके कारण आपको नेशनली इंटरनेशनली अगर आपका केसेस प्रेजेंट करना है तो आसानी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ 2-4 केसेस मैंने लिए हैं। डायग्नोस्टिक वैलिडेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप यहाँ पे एक पेशेंट देख रहे हैं, ऊपर का फोटो है। एग्जामिनेशन में आप वाया नेकेड आइज उसको देखेंगे तो विजिबिलिटी तो जितनी आंखों की उतनी ही विजिबिलिटी रहेगी। और वैल्यूएडिशन क्या हुआ डायग्नोसिस में? कुछ नहीं हुआ, डैंड्रफ नहीं है, तो फ्लेक्स कुछ आपको दिखे नहीं, क्योंकि आपने नेकेड आइज से उसको देखा है। लेकिन वही चीज जब आप डर्मोस्कोप के जरिए करेंगे, तो आप देख रहे हैं नीचे स्किन एंड हेयर एनालाइजर आपने यूज किया या डर्मोस्कोप यूज किया, तो विजिबिलिटी बढ़ गई। 50x या 200x के लेंस यूटिलाइज करके आप ये स्काल्प एनालिसिस कर सकते हैं। स्काल्प एनालिसिस करने के बाद उसी पेशेंट में डैंड्रफ फ्लेक्स आपको दिख गए, डैंड्रफ फ्लेक्स सीन। सो दिस इज द वैल्यू एडेड डायग्नोसिस, क्योंकि डायग्नोसिस ही चेंज हो गया। पहले आपका निदान खाली था, केवल बालों का झड़ना, इतना ही निदान था। अब आपका डायग्नोसिस हो गया डैंड्रफ मतलब दारुणक। तो दारुणक की चिकित्सा अलग है, खालित्य की चिकित्सा अलग है। डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन ऑलवेज लीड्स टू द ट्रीटमेंट वैल्यू एडिशन, ये बात कभी भी ना भूलिए। डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन ऑलवेज लीड्स टू द ट्रीटमेंट वैल्यू एडिशन। तो अभी इतनी सिंपल इसमें हमने देखा नेकेड आइज से डायग्नोसिस हो गया था खालित्य, वाया डर्मोस्कोप डायग्नोसिस हो गया दारुणक। ग्रंथ में खालित्य अलग व्याधि है, दारुणक के अलग व्याधि है। खालित्य रहता तो आप खालित्य तेल देते, दारुणक है तो शायद अभी आप दारुणक तेल देंगे, आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगी, आपके मेडिसिन चेंज हो जाएंगे। उसी प्रकार हम नेक्स्ट पेशेंट यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, एग्जामिनेशन हमने नेकेड आइज से किया, पेशेंट में केवल खालित्य लक्षण मिल गया, बाल झड़ रहे, आपने इतनी ही आपके केस पेपर के ऊपर नोंद की। लेकिन जब आपने उसके हेयर सैंपल्स निकाले, उसको आपने माइक्रोस्कोप एनालिसिस के लिए भेज दिया, माइक्रोस्कोपी एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि वहां पे लॉस और नीट भी है। वहां पे आप नीट का पिक्चर देख रहे हैं हेयर शाफ्ट के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली अब निदान क्या हो गया आपका? कृमिजन्य खालित्य। अब केवल सिंपल खालित्य नहीं है, अब निदान क्या हो गया? अब कृमिजन्य खालित्य निदान हो गया। अब कृमिजन्य खालित्य है तो जाहिर है कि अब चिकित्सा चेंज हो गई। अब कृमिघ्न द्रव्य देने पड़ेंगे, कृमिघ्न केशलेप लेप देने पड़ेंगे, अभ्यंतरतः आपको कृमि कुठार देनी पड़ेगी, या जो भी कृमि के रिलेटेड वातज पित्तज और कफज, इस प्रकार से आप कृमि का निदान करके उसके तौर पे रोगी की प्रकृति परीक्षण भी करके हेतु कृमि के उस पेशेंट में क्या क्या मिलते हैं वो देख के हेतु परिवर्जन मतलब आशापकर्ष निदान परिवर्जन, इस प्रकार की चिकित्सा आप प्लान करके, कृमिघ्न चिकित्सा प्लान करके उसको रिजल्ट दे सकते हैं। तो देखिए, सिंपल मेथड के कारण, यहाँ पे केवल माइक्रोस्कोप यूज करने के कारण डायग्नोस्टिक वैल्यूएडिशन लीड्स आपको ट्रीटमेंट वैल्यूएडिशन मिल गया, और नेकेड आइज का डायग्नोसिस अलग था, माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस आपका अलग हो गया। उसी प्रकार से हम हाईटेक क्लिनिक में आगे देख रहे, देखिए, जब पेशेंट आपके पास आता है वो बोलता है कि मेरे बाल यहाँ के गिर गए हैं, झड़ गए हैं, बालनेस आना शुरू हो गया है, क्या मुझे यहाँ पे बाल आ सकते हैं? उसका एक सिंपल क्वेश्चन होता है। अब आप नेकेड आइज से देखेंगे तो आपको हेयर फॉलिकल से देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे बाल नहीं आ सकते, शायद आप उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, शायद आप उसको रिफ्यूज करेंगे। लेकिन वही पेशेंट को आप वाया डर्मोस्कोप, वाया स्किन एंड हेयर एनालाइजर देखते हैं तो आपको वहां पे हेयर फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, विजिबल होते हैं वो बाल एरिया के ऊपर भी। और अगर हेयर फॉलिकल्स विजिबल है तो आप उसको एश्योरिटी के साथ बता सकते हैं कि यस, क्योंकि भाव पदार्थ से ही भाव पदार्थ की उत्पत्ति होगी। अगर हेयर फॉलिकल्स रहेंगे तो डेफिनेटली वहां पे हेयर आएंगे, अगर हेयर फॉलिकल्स ही नहीं रहेंगे तो वहां पे बाल कहाँ से आएंगे? इसलिए आपको लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट को यूज करना चाहिए आपका निदान परफेक्ट करने के कारण। और भाव पदार्थ से भाव पदार्थ की उत्पत्ति होती है, आपको उसमें सरलता आती है, चिकित्सा सौकर्य आ जाता है। इसलिए आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पेशेंट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेकंड थर्ड विजिट में आप जब उसको रिपीट एनालिसिस करके दिखाते हैं तो पहले से ज्यादा जब बाल वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखता है, डर्मोस्कोप की लेवल पे देखता है, तो ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो और वो 2-4 महीने और ट्रीटमेंट लेने के लिए राजी होता है।
जैसे ही ट्रीटमेंट और 2-4 महीने आगे जाती है, उसको रिजल्ट 100% जो ज्यादातर तौर पे हमने देखा है कि मैक्सिमम जो आयुर्वेद के क्लिनिक्स होते हैं, वो आयुर्वेद के क्लिनिक्स में फर्स्ट सेकंड के बाद ही फॉलोअप मिस हो जाते हैं पेशेंट्स के। तो क्यों फॉलोअप मिस हो रहे हैं, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, और वो फॉलोअप मिस ना हो इसलिए आप उनको कोई तो रिपोर्ट के तौर पर, कोई तो फोटोग्राफी के तौर पर उनको रिजल्ट दिखाओ। देखो पहले फॉलोअप में ये था, सेकंड फॉलोअप में ये है। थर्ड पार्टी इवेल्युएशन होना चाहिए। आप नहीं, आपकी पीठ कभी भी नहीं थपथपाने की, हमेशा याद रखिए। पेशेंट ने भी नहीं बताना है। थर्ड पार्टी एनालिसिस, थर्ड पार्टी एनालिसिस होना चाहिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर के जरिए हो, चाहे वो किसी भी अलग चीज के जरिए हो। थर्ड पार्टी एनालिसिस होना चाहिए। जजमेंट दूसरा व्यक्ति करेगा, दूसरी पार्टी करेगी। जैसे हम हीमोग्लोबिन के लिए आपके पास पेशेंट आता है, वो लेबोरेटरी का रिपोर्ट कार्ड लेके आता है कि आपका HB 8 था या 9 था। फिर आप चाहे तापेदी लोह दे दो, गौड़ा रिष्ट दे दो, या कोई भी लोहा सब दे दो, और जब उसका रिपोर्ट पे 12 वैल्यू आ जाता है, तब आप हैप्पी होके वो लेबोरेटरी के रिपोर्ट शेयर करते हैं ना। पेशेंट भी वो रिपोर्ट के ऊपर ज्यादा भरोसा रखता है आपके या उसके लक्षण से ज्यादा। तो आपको भी इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना है। जब समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया हम कहते हैं, तो उसका HB भी अच्छा होना चाहिए, थायराइड वैल्यूज भी अच्छे होने चाहिए, उसके हार्मोन्स भी अच्छे होने चाहिए। उसी प्रकार ये पूरा शरीर एक है, जिसके ऊपर चिकित्सा आपको करनी है वो तो सेम ही है। अगर आपको उसको ट्रीट करना है तो आपको हीमोडायनेमिकली भी, आपको इंस्ट्रूमेंट के दौर जरिए भी, और आपको फिजिकली भी, सभी जगह पे उसमें क्या इंप्रूवमेंट है वो दिखाने आना चाहिए। ओके, तो इस चीज को आप, मैं आशा करता हूँ कि ध्यान में रखेंगे। जैसे अभी निदान के लिए हमने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का हाईटेक यूटिलाइजेशन देखा, उसी प्रकार हम चिकित्सा के लिए भी शॉर्ट में देखते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट वैल्यू एडिशन थ्रू टेक्नोलॉजी। क्या वैल्यू एडिशन किया? सीधी सी तो ट्रीटमेंट थी, केवल लेप देना था पेशेंट को। उसको इंद्रलुप्त था, वहां पे आप देख रहे चाई गिर गई है उसको, और वहां पे लेप देना है। ड्रग पेनिट्रेशन एब्सॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, मैनुअल प्रोसेस है, आप हाथ से लगाएंगे तो। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है आपको भी पता है। आप लेप की औषधि पेशेंट को डिब्बी में देके घर पे देंगे, या कोई भी आप मलहम देंगे, लेप देंगे, तो क्या होने वाला है? पेशेंट घर में वो लेप लगाएगा, वो लगाता है नहीं लगाता है आपको पता नहीं, कितना समय लगाता है आपको पता नहीं, मेडिसिन अच्छी तरीके से लगाया कि नहीं लगाया आपको पता नहीं, कंसिस्टेंसी आपको पता नहीं, और वो अगर खुद लेप लगाएगा तो आपको पैसे भी नहीं देगा, मतलब आपका वो भी गया। सभी सभी हर एक चीज में निगेटिव ही, लॉस ही देख रहे हैं ना आप। अब उसको ही आप फॉर एग्जांपल हाई फ्रीक्वेंसी मशीन के जरिए वो जेल, वो लेप आप उस इंद्रलुप्त के पैच के ऊपर लगाएंगे। ओके, केवल आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया। जैसे आप टैबलेट बनाने के लिए हम पहले क्या करते थे, हम हाथों से टैबलेट बनाते थे। तो हाथों से टैबलेट बनाने के कारण हर एक गुटिका वटिका अलग अलग साइज बनता था, मैनुअल मेथड थी, हैंडलिंग ज्यादा होता था, नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स भी थे। लेकिन अब क्या हो गया, वो भावना द्रव्य देने के लिए भी वो इडली जैसा रगड़ा आ गया, उसमें डाल के हम भावना द्रव्य देते। टैबलेट मेकिंग मशीन आ गया, तो ईच एंड एवरी टैबलेट का साइज भी अच्छा होने लगा है। तो आपने केवल औषधि निर्माण को हाईटेक किया, ड्रग की क्वालिटी, ड्रग का स्टैंडर्ड, ड्रग की इफिकेसी, सब चीजें बढ़ गई। उसी सेम प्रकार ट्रीटमेंट के लिए अभी आपने केवल एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया। मैं फिर से कह रहा हूं, औषधि द्रव्य हमें आयुर्वेद ही देना है, तत्व और शास्त्र छोड़ना नहीं है। बस व्यवहार के लिए, वहां पे लगाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी मशीन का इस्तेमाल किया। अब क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी मशीन आने के कारण ड्रग पेनिट्रेशन अच्छा होने लगा, एब्सॉर्प्शन फास्ट होने लगा, विद इन द टाइम, पर मिनट पर रोटेशन आप जितने लगाएंगे वो आप मैनेज कर पाएंगे। एक सिस्टमेटिक प्लान हो गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स आपके अच्छे हो गए, पेशेंट को भी आप कुछ अच्छा अलग ट्रीट कर रहे हैं, उसका एक फील आना शुरू हो गया। आप ट्रीटमेंट चाहे खुद दे रहे हैं, आपके स्टाफ से दे रहे हैं, क्लिनिक का टाइम जा रहा है, 30 मिनट्स आप उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो आपके ट्रीटमेंट के लिए एक 500,000 रुपए तो डेफिनेटली वो लेप लगाने के दे के हर एक सिटिंग के लिए दे के जाता है। और हाई फ्रीक्वेंसी मिलती कितनी में है इंस्ट्रूमेंट? 2-2,500 में इंस्ट्रूमेंट मिलता है। एक ही इंस्ट्रूमेंट में, एक ही पेशेंट में, एक ही पेशेंट का पूरा खर्चा निकल जाता है, और सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन भी आता है। तो इसलिए हम इन चीजों को हमने गौर करना चाहिए कि बिना तत्वों को छेड़छाड़ किए, बिना शास्त्र को छेड़छाड़ किए, किस प्रकार से हम इन
मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में डाल सकते हैं और ड्रग पेनिट्रेशन, एब्सॉर्प्शन, एक सिस्टमैटिक यूटिलाइजेशन, प्रेजेंटेशन को कैसे एनहांस कर सकते हैं. ओके, दिस विल गिव यू द ट्रीटमेंट वैल्यू एडिशन थ्रू टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं. एक अरुण शिका की केस थी और उस अरुण शिका के कारण वहां पे जो अरुण शिका थी वो जा नहीं रही थी और मुझे लग रहा था कि इस कृमि को आशापकर्ष की जरूरत है, लेकिन आशापकर्ष अरुण शिका तो निकलेगी नहीं, हाथ से तो निकाल नहीं सकते, तो उसको थोड़ा अग्निकर्म देने का मैं सोच रहा था. लेकिन अग्निकर्म मुझे ऐसा करना था कि हेयर फॉलिकल भी डैमेज ना हो और वहां का स्काल्प भी डैमेज ना हो. तो मुझे ये आविष्कार मेरे हाथ में आ गया. लेजर यूनिट छोटा सा है, मॉडर्न का इक्विपमेंट है, तो हमने लेजर यूनिट के जरिए वहां पे अग्निकर्म करने का सोचा. तो अब फायदे क्या क्या हो गए इसके. इंस्टेंट हिटिंग हो गया, कंट्रोल एंड टारगेट स्पेसिफिक एक्शन हो गया, क्रूमिंग एक्शन भी हो गया विदाउट डैमेजिंग द हेयर फॉलिकल. हेयर फॉलिकल भी डैमेज नहीं हुए, हेयर भी डैमेज नहीं हुए और केवल वहां के अरुण शिका चली गई. एक्सलेंट रिजल्ट वी गॉट आफ्टर 4 to 5 सिटिंग्स. तो ये हो गया वहां का ट्रीटमेंट वैल्यूएडिशन थ्रू टेक्नोलॉजी. और कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है, नॉन एब्लेटिव ट्रीटमेंट है, पेशेंट भी हैप्पी रहता है. और पेशेंट हर एक सेटिंग के लिए जब आपके क्लिनिक में फॉलोअप देने के लिए आता है तो ऑटोमेटिकली आपके पेशेंट के नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़ जाते हैं, फॉलोअप भी बढ़ जाता है, रिजल्ट भी अच्छा मिलता है और पेशेंट की पेइंग करने की इच्छा भी बढ़ जाती है क्योंकि आप उसको खुद पर्सनली सर्व कर रहे हैं. तो इन चीजों को हमने चिकित्सा के लिए, जैसे अभी अग्निकर्म चिकित्सा करने हैं तो आजकल बहुत से वैद्य आप देख रहे हैं कि कॉटरी यूज करते हैं, आरएफ कॉटरी यूज करते हैं, अग्निकर्म की अलग अलग शलाकाएं यूज करते हैं, है ना. तो उसी प्रकार लेजर भी एक अग्निकर्म का यूनिट है. जहां पे आपको जरूरत है वहां पे यूज करो. मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को सीखो, आयुर्वेद के तत्व और शास्त्र बिना छेड़छाड़ के उसमें बिठाओ और यूज करो. यू विल एंजॉय योर प्रैक्टिस. ऐसे अब 30 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं. एक 5-10 मिनट में रिक्वेस्ट करूंगा ऑर्गेनाइजर से कि अभी मेरे बढ़ाए आप, तो मैं आगे की जो प्लीज चीजें हैं. डेफिनेटली प्लीज. थैंक यू सर, थैंक यू सर. तो आगे की चीजें मैं इन शॉर्ट अभी फास्ट थोड़ा सबको दिखाता हूँ क्योंकि एक कोर कंसेप्ट जो डायग्नोस्टिक वैल्यूएडिशन एंड ट्रीटमेंट वैल्यूएडिशन थ्रू हाईटेक और टेक्नोलॉजी, ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी पहुंचाया है. तो अभी हम अलग अलग केवल एग्जांपल्स देखते हैं और आगे जाते हैं तो आप सब लोगों की आइडिया भी क्लियर हो जाएगी. फॉर एग्जांपल मॉइस्चर एनालिसिस के लिए आप मॉइस्चर एनालाइजर यूज कर सकते हैं. इसी प्रकार का आयुर्वेद में हम स्किन इसेंशियल्स के साथ अलग अलग मशीन्स यूज करते हैं जिससे हम माइक्रोडर्मा एब्रिजन, मतलब अगर आपको हाइड्राडर्मा एब्रिजन करना है, स्किन बॉडी पॉलिशिंग करना है, एक्सफोलिएशन करना है, रिज्यूनेशन करना है, तो आप इस प्रकार के 5-in-1 जैसे मशीन यूज कर सकते हैं. अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये 5-in-1 माइक्रोडर्मा एब्रिजन, एक्सफोलिएशन, स्किन रिज्यूनेशन ये कहाँ आयुर्वेद में आता है, ये थोड़ी आयुर्वेद में आता है, ये यूज करना चाहिए का. मैं वही कहता हूं कि हमेशा आप समझो तो मशीन को पहले देखो, समझो, आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स में बिठाओ, तत्व और शास्त्र को ना छोड़ो, व्यवहार के लिए आप इंस्ट्रूमेंट को यूज करो. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे पृथ्वी तत्व का यहाँ पे माइक्रोडर्मा एब्रिजन है. ये जो आप देख रहे हैं ना फर्स्ट वाला क्रिस्टल और डायमंड, ये पृथ्वी तत्व चिकित्सा के लिए यूज किया जाता है. आप तत्व चिकित्सा के लिए आप वहां का हाइड्राजेट यूज करेंगे, मतलब जल जल ही है, पानी ही है. अब पानी कोई मॉडर्न का आविष्कार नहीं है, डायमंड कोई मॉडर्न का आविष्कार नहीं है. एयर डैंड्रफ रिमूवल के लिए हम एयर जेट यूज करते हैं, मतलब वायु तत्व की चिकित्सा है, वो कोई मॉडर्न का आविष्कार नहीं है. हमारी गलत फहमी क्या हो रही है, क्या मोबाइल यूज करेंगे तो मॉडर्न बन गए, लैपटॉप यूज करेंगे तो मॉडर्न बन गए. मैं हमेशा कहता हूँ आज अगर शिवाजी महाराज होते और वो कहते हैं कि उनको दूर जाना है, सरहद पार जाना है या दिल्ली तक पहुंचना है, तो वो क्या करते, वो घोड़ा लेके जाते या जगवार लेके जाते. वो जगवार ही लेके जाते ना, वो अभी घोड़ा लेके क्यों जाते. उसी प्रकार अगर हमारे एंशिएंट लोग, चरक जी भी खुश हो जाएंगे अगर आप टेम्परेचर नापने के लिए आप थर्मामीटर का यूज करेंगे. चरक जी को दुख थोड़ी ही होने वाला है, वो थोड़ी ऐसे बोलने वाले हैं कि यार मेरा शिष्य टेम्परेचर यूज करने के लिए तरतम भाव परीक्षण के लिए अंशांश कल्पना यूज कर रहा है, थर्मामीटर यूज कर रहा है, तो चरक जी को तो आनंद ही होने वाला है ना, उनको थोड़ी दुख होने वाला है. तो ग्रंथ में एडिशन तो होना चाहिए, अलग अलग चीजें को, तत्व और शास्त्र को बिना छेड़छाड़ किए हमने
व्यवहार में सौकर्य लाना चाहिए। तो व्यवहार सौकर्य आप यहाँ पे देख रहे हैं, पृथ्वी तत्व के लिए माइक्रोडर्मा एब्रिजन, आप तत्व के लिए हाइड्राजेट, तेज तत्व का परीक्षण करने के लिए आरएफ कॉटरी, वायु तत्व का परीक्षण करने के लिए यहाँ पे आप एयरजेट देख रहे हैं, और आकाश तत्व का परीक्षण करने के लिए वैक्यूम और सेबिस्फीयर। तो ये 5-in-1 मशीन में पंचमहाभूत ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और स्किन के ऊपर आप देखेंगे तो स्किन की छाया और प्रभा में ये पंचमहाभूत की ही पंच छाया बताई गई है। आकाशीय, नाभीय, वायवीय, पार्थिव, यही 5 छाया है। और इन पंच छायाओं को करेक्शन करने के लिए हमें यही 5 महाभूतों की जरूरत पड़ती है, चाहे आप वो आयुर्वेद से निकालो या फिर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से निकालो। काम तो आप इन्हीं 5 महाभूतों के ऊपर, काम तो आप इन्हीं 5 छाया के ऊपर करने वाले हो। इसलिए तत्व और शास्त्र मत भूलिए। व्यवहार के लिए वेलकम करना है तो फूल दे दो, झप्पी दे दो, नारिकेल दे दो, शाल दे दो, या फिर शैंपेन उड़ाओ रशिया में गए तो, कोई भी चलेगा। वेलकम वेलकम होना चाहिए। व्यवहार आप अलग अलग कर सकते हैं अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से। तो ग्रंथ में जब हमने ढूंढा इन सब चीजों को, मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि हमने ऐसे ही, तो ये पंच महाभूत का जो 5-in-1 मशीन है पूरा ग्रंथ में मिला। लोह चूर्णानि सर्वाणि धातवो लवणानि च रत्नादि दंतः शृंगानि। देखो, हमें ग्रंथ में अवसाधन करने के लिए लोह चूर्ण से लेके रत्नों तक यूज करने को बोला है। तब आप मुझे बताइए, हीरक, डायमंड, ये रत्न में आता नहीं है क्या? डेफिनेटली आता है। तो अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में ऊपर का अगर टिप डायमंड का होता है और रत्न से आप अवसाधन करते हैं, तो अपने सुश्रुत जी खुशी हो जाएंगे ना कि अरे वाह वाह वाह, अभी माइक्रोडर्मा एब्रेजन को डायमंड एब्रेजन कितना अच्छा रत्न का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो उसी प्रकार से उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स, मतलब अलग अलग एल्यूमिनियम के डाल सकते हैं, लोह के डाल सकते हैं, मंडूर के डाल सकते हैं, या फिर आप हम जो हमारे यहाँ हम थोड़ा इनोवेशन करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अलग सीखते हैं, तो बृहद हरिद्रा खंड भी उसमें डाल के आप माइक्रोडर्मा एब्रेजन कर सकते हैं, वर्ण्य कार्य भी अच्छा हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें ये इंस्ट्रूमेंट्स को यूटिलाइजेशन करना है। अब बस मैं लास्ट 5 मिनट्स में आपको केवल लिस्ट दिखाता हूं ताकि आप सब लोगों को एक उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। बाकी तत्व शास्त्र और व्यवहार हमें छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रच्छान कर्म, उद्वर्तन कर्म, लेखन कर्म, यही सब माइक्रोडर्मा एब्रेजन में किया जाता है, जिसके आप श्लोकों के साथ सुश्रुत जी के यहाँ के रेफरेंसेस देख रहे हैं। उसी प्रकार अवसाधन कर्म, पांडु कर्म, विश्रावण कर्म, गौर को कृष्ण करना, कृष्ण को गौर करना, यानी कृष्णीकरण कर्म, पांडुकरण कर्म, यही हमारे ग्रंथ में वर्ण अध्याय में सब आया है। तो अगर कोई आप पेशेंट आपके पास स्किन का जो ब्लैक पैच है वो निकालने के लिए आता है और आप वहां पे पांडु कर्म करते हैं या कृष्ण कर्म करते हैं, तो बिंदास करिए, बिन दिक्कत करिए, और ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज करके करिए। प्रतिसारण के लिए भी देखो कितने अलग अलग द्रव्य ग्रंथ में आए हैं, वो भी हमने इस मशीन्स में यूटिलाइज करने चाहिए। और जैसे हम हाइड्राजेट में वर्णगन का क्वाथ डालते हैं या फिर अलग अलग फलों के जूस डालते हैं और उससे हम स्किन को रिहाइड्रेट करते हैं, स्किन का रिहाइड्रेशन होना इंपॉर्टेंट है ना। और वो करते समय जैसे हम धारा देते हैं, उसी प्रकार ये हाइड्राजेट से धारा ही तो हो जाती है। और स्किन के लिए धारा सबसे बढ़िया होती है, उसका कोई भी रिजुविनेशन करने के लिए। जैसे स्नान है उसी प्रकार की वो चिकित्सा है ना। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में आपको बताना चाहता हूँ कि ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास है, जैसे नॉन एब्लेटिव रेडियो फ्रीक्वेंसी है, 7-in आरएफ है, मीजो इलेक्ट्रोपोरेशन है। इन सब के पढ़ाई करके सुश्रुत के सभी रेफरेंसेस निकाले हैं, किस तरीके से सुश्रुत जी, मतलब अगर उसको तत्व और शास्त्र में बिठाना है तो किस प्रकार से हम बिठा सकते हैं और किस प्रकार से चिकित्सा कर सकते हैं। इनका एक मैं आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल केवल दे रहा हूं अभी। तो डायोड लेजर, लेटेस्ट डायोड लेजर भी आप यूज कर सकते हैं। रोम शातन, ये तो हमारे ग्रंथों की खासियत थी। रोम शातन के लिए बहुत अलग अलग पर्याय हमारे ग्रंथों ने बताया है। उसी प्रकार से एक डायोड लेजर भी आजकल रोम शातन के लिए आप यूज कर सकते हैं, आपके क्लिनिक को हाईटेक बना सकते हैं और एक्सलेंट रिजल्ट मिलते हैं। जब ये लेजर इतना चल रहा था कि सर जी, पवन कुमार सर, हमें लग रहा था कि अब केश आयुर्वेद बंद करके कुछ अलग अकेश आयुर्वेद वगैरह निकालना पड़ेगा क्या? इतने आजकल अनवांटेड हेयर के पेशेंट बढ़ रहे थे, तो हमने एक काया आयुर्वेद ही स्किन स्पेशलिटी के लिए निकाला। और उस काया आयुर्वेद के अंडर हम इन सभी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को स्किन के लिए पर्टिकुलरली सेगमेंट में यूज कर रहे हैं।
स्किन टैग, वॉट, मोल, कॉन्स रिमूवल के लिए आप इस प्रकार से जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है ये यूज करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से वॉट का, टैग का निर्धारण कर सकते हैं। सुश्रुत जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, आप इनका यूटिलाइज कर सकते हैं। स्मार्ट मिरर आप ले सकते हैं स्किन एनालिसिस के लिए। ये ऑटोमेटिकली एक स्किन का एनालिसिस देता है, बहुत इजी जाता है। आप कुछ ब्यूटी इक्विपमेंट्स भी रख सकते हैं, जैसे मैंने कहा हाई फ्रीक्वेंसी है, गैल्वेनिक है, सेबिस्पेयर है, इनका यूटिलाइजेशन करना आपके क्लिनिक में शुरू करो। ये वुड्स कॉम जैसा एक अपैरेटस होता है, मिरर होता है, डिजिटल माइक्रोस्कोप होता है, उनको आप यूटिलाइज करना शुरू करो। डर्मा रोलर, डर्मा पेन, पीआरपी जैसे ट्रीटमेंट जो है वो प्रच्छान कर्म करने के लिए एक्सलेंट है। आप खरपर से प्रच्छान करेंगे, या फिर आप ब्लेड से प्रच्छान करेंगे, या फिर आप जलोका से रक्त मोक्षण करेंगे, या फिर आप उस बाल्ड एरिया में अगर कहीं पे आपको रिजल्ट देना है तो आप पारिजातक पत्र से प्रच्छान करेंगे। उसी प्रकार एक अलग अलग नंबर के माइक्रो निडलिंग है, आप निडलिंग का इस्तेमाल करके वहां का प्रच्छान कर्म अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो फिर से बता रहा हूं, तत्व और शास्त्र को छोड़ना नहीं है, व्यवहार के लिए मॉडर्न के लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज करने हैं। डायरेक्ट लेजर के साथ टैटू रिमूविंग भी, पिगमेंटेशन भी आप निकाल सकते हैं अलग अलग लेजर्स के साथ। अब आप कहेंगे अरे पहले के जमाने में तो सबसे ज्यादा ये टैटू का फैड था, ये फैड अभी फिर से आना शुरू हो गया है। पहले तो सबसे ज्यादा वो टैटू ही होते थे। पहले के जमाने में सबसे ज्यादा शस्त्र कर्म होते थे, क्योंकि मैक्सिमम जो व्रण होते थे वो शस्त्र के कारण आते थे, और हर एक को वो व्रण निकालने होते थे। इसलिए सुश्रुत जी में व्रण का अध्याय इतना बड़ा लिखना पड़ा, षष्ठी व्रण उपक्रमीय उपक्रम देने पड़े। तो उन सभी उपक्रमों को हमने आयुर्वेद के हिसाब से, जैसे मैंने कहा कृष्णीकरण और पांडुकरण, जो काला है उसको श्वेत करना है और जो श्वेत है उसको काला करना है। ऐसी ही दो चिकित्साएं हैं। इसके लिए जो जो बेस्ट है मार्केट में वो आप ले लो, अपने हिसाब से उसको पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट्स में यूटिलाइज करो। फेशियल रेंज में अलग अलग पिगमेंट रिमूवल के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, व्हाइटनिंग के लिए, स्किन रिजुविनेशन के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, उनको भी ले लो, उनका शास्त्र तत्व सीखो और व्यवहार में उनका यूटिलाइजेशन करो। ओके, इसी प्रकार बहुत से मशीन्स हैं जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी के कुछ और फोटोज डाले हैं, आप बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सलेंट रिजल्ट मिलते हैं अगर आप अच्छी तरीके से स्किन एंड हेयर की प्रैक्टिस, एंसेंट मॉडर्न दोनों को साथ में लेके, मतलब प्रिंसिपल्स आयुर्वेद के होने चाहिए और मशीन्स मॉडर्न की होनी चाहिए, इसका अगर अच्छा कॉम्बिनेशन करके यूज करते हैं तो आप ऐसे शॉकिंग रिजल्ट्स आप आपके पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो कभी ये भूलना नहीं है, आप यहाँ पे माइक्रोडर्मा एब्रेजन विद क्रिस्टल देख रहे हैं, एक ही सेटिंग में कितना रिजल्ट मिल गया आप आपके सामने देख रहे हैं। आप सोरेसिस के पेशेंट देख रहे हैं, देखिए बिफोर एंड आफ्टर यू कैन सी एक्सलेंट रिजल्ट वी कैन गिव विद द इंटरनल मेडिकेशंस विद मशीन्स। तो जिन लोगों को ऑयलिंग नहीं है, पंचकर्मा नहीं है, अलग कुछ करना है, हाईटेक क्लिनिक करना है, वो इस प्रकार के मशीन ट्रीटमेंट्स और अपने क्लिनिक को हाईटेक करने का सोच सकते हैं। सोरेसिस पेशेंट देख रहे हैं, चर्म कुष्ठ का पेशेंट देख रहे हैं। ओके, माय लास्ट स्लाइड, टेक होम मैसेज, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी एंड मोस्ट सीनियर लोग भी यहाँ पे है, सब लोगों को मैं विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी आयुर्वेद को कुछ अलग दिखाना मेरा प्रयास नहीं था। मेरा प्रयास बस इतना ही है कि तत्व और शास्त्र को बिना छेड़े व्यवहार में सौकर्य कैसे लाए। इसलिए जो भी किया है वो थोड़ा बहुत इनोवेशन, इन्वेंशन हम कह सकते हैं, आपके सामने रखने का कोशिश किया। इसमें जो भी गलतियां हैं वो मेरी है, जो भी अच्छा है वो शास्त्र का है, आयुर्वेद का है। जो अच्छा है वो शास्त्र का है, वो आप ले लीजिए, आप भी उसको और अच्छा बनाइए। अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशने, ऐसा वाकबट जी कहते हैं। अगर हम हर एक चीज का धीरे धीरे अध्ययन करेंगे तो एक शास्त्र दृष्टि हमें मिल जाएगी और उसी दृष्टि से हमें कर्म सिद्धि भी मिल जाएंगी। थैंक यू माय फ्रेंड जयेश ठक्कर सर एंड रिस्पेक्टेड शर्मा सर, आपने हमें यहाँ पे न्योता देके हमारे विचार सुनने के लिए यहाँ पे हमें आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।